Good afternoon, students. Welcome to the another session of Information and Technology. In the last class, we have discussed the different elements or different components that makes a slides much productive and much more representable. Like we have discussed handouts, speaker note, outline, masters, and slideshow. In the same topic or in the same page, into page number 235, you can find the next topic, that is uses of presentation package. That how these different packages are used for different purpose. It's not like that always we are using it in a PowerPoint presentation in the form of a slideshow. We are using it in different place, in different workspace, in different reasons, in different scenario. The very first is on-screen presentation. Like you will find, you go to different office or different reception, you will find there is a monitor and the people are just making a marketing of their product. वो अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, या फिर I would say the better example will be like you are having a laptop or desktop in front of you and you have a PPT and you're just putting it in slideshow mode, and the slides are moving one after another, and that slideshow have many things, have videos, have sound effect, have animation. So on screen presentation is basically to display presentation in a monitor, in a TV, that can be an LCD and an LED. The next one is web presentation. There are many websites which you will visit, or often you will find that these website in the home page there are many content, or mostly images are just moving one after another. So these websites are basically web presentation. Web presentation is representing information in a web platform, and that can be accessible by anyone from anywhere. So mostly the content in the form of image are just moving from one image to another, switching from one image to another in a website. 35 slides. When you are creating a presentation and you don't want to open it in the PowerPoint or in that application again and again, you just want that you create that file and it should automatically get plug and play kind of thing. It automatically get played, कि आप उसको इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे उस फाइल को, उस पीपीटी को, उस प्रेजेंटेशन को, कि किसी भी डिवाइस में वो कंपैटिबल हो और इजीली प्ले हो जाए. तो जब हम किसी भी पीपीटी को एक MP4 या वीडियो के किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड 35 स्लाइड्स. Overhead transparencies, the structure of smart class. When we talk about overhead transparency, we are talking about a projector which is over our head. When the audience is sitting somewhere and the projector is projecting on a wall or in a screen from the top of the hall, then that is overhead transparencies. Then okay, can be printed on a, and sorry, at the same time this overhead transparency is having another points to be added on. Like this is something which is printed on a transparent sheets and facilitating overhead presentation. Like what, how I could explain this in a much better situation, like these screen that we are using in a theater, in an auditorium, these screens are transparent. So when anything is getting objected or projected on these screens, so that kind of visible from the both end, the audience can sit from the both end, and the same content can be visible to the both side of the auditorium. Like if the screen is there at the center and the audience is there at the both side of the center, that situation also can be considered as overhead transparencies, because it is getting reflected in a transparent sheets. But the best example which I have explained you in the very beginning, that when we talk about overhead transparencies, we are talking about the projector which is there on the top of the audience. Handout and references, this is something that we have already discussed in the last class. Handout is basically the hard copy of the slide. जब भी कोई आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक सेमिनार या वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, तो आप ये जरूर चाहते हैं कि आपके ऑडियंस आपके टॉपिक से, आपके कंटेंट से, आपके मटेरियल से फेमिलियर हो सके, जिनको आइडिया मिल सके कि आज के प्रेजेंटेशन में होने क्या वाला है. तो हैंड आउट इज बेसिकली यू आर गिविंग ए रेडीमेड मटेरियल टू द ऑडियंस इन ए हार्ड कॉपी फॉर्म. सो
In this uh, in this topic we have discussed what is 35 slides, what is on screen presentation, what is web presentation, what is handout and references. These are the different uses. References is basically say any kind of catalog or template that we are printing and just using it for different purpose, like for campaigning of any product or campaigning of election. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर सड़क से गुजर रहे हैं and you will find that people is just giving you a piece of paper and having some ad on it, maybe about a coaching center, maybe about some sort of shopping mall or anything else, and they are just giving it to you just for only for the marketing purpose. And these references, there is material that they are giving it to you, they are actually kind of handouts, kind of references, which is giving you an idea or overview what exactly is all about. तो ये तो था आपका एडिशनल कंपोनेंट्स जो एक पीपीटी या स्लाइड्स को बहुत अच्छा या बेहतरीन बनाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर ऑफ इम्प्रेस। जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा या लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने देखा था जो भी स्प्रेडशीट का, उसमें भी हम लोगों ने देखा था फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। उसके पहले हम लोगों ने देखा फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर, ग्राफिक्स एंड ओएलई। इस तरह से हम लोगों ने देखा। स्प्रेडशीट के फीचर्स में हम लोगों ने देखा इट हेल्प्स टू स्टोर डेटा इन बल्क वॉल्यूम, इट हेल्प्स टू डू द कैलकुलेशन, इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट द डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म, इट हेल्प्स टू डू द एनालिसिस। तो इतने सारे प्रेजेंट फीचर्स हम लोगों ने स्प्रेडशीट का देखा। अब जब बात करते हैं हम लोग इम्प्रेस की, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन एंड देयर आर फोर टॉपिक और फोर फीचर्स विच इज मेंशन इन योर बुक। द वेरी फर्स्ट वन, that using Impress we can make any kind of presentation, whether it is an on-screen and a web presentation, a 35 slides, a handout, किसी भी तरह का मटेरियल हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इन इम्प्रेस वी हैव अ प्री डिफाइंड लेआउट दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स रहते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको प्री डिफाइंड कलर, प्री डिफाइंड फॉन्ट, प्री डिफाइंड साइज सब कुछ स्पेसिफाइड है। Just you need to put your content, you need to put or write down whatever you put in your slides. The template is making our work easier by reducing, by minimizing the effort that we have to make. How? Because they are giving everything, they are giving a predefined structure that shows everything, okay, where your title will be, where your content will be, where your heading will be, where your pictures will be. So template is something very important that has to be given a priority when we are talking about Impress. The third feature, the slides in Impress can contain audio, video, graphics, table, photographs, etc. in addition to text. मतलब आप Impress में या PowerPoint presentation में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते, मतलब सॉरी टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसमें किसी भी तरह का ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, whether that is a picture, whether that is a table, whether that is a video, an audio, or any photographs. Anything we can insert in Impress. Fourth one, once a presentation has been made, it is very easy to change the order of slides. Also can delete the slides between the slides of presentation. मतलब अगर आपका पीपीटी तैयार है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा स्लाइड है जो आप 5th स्लाइड्स पे है, आप उसको स्लाइड को 7th पे शिफ्ट करना चाहते हैं, इजीली यू कैन रीऑर्डर द स्लाइड्स। अगर आपको कोई स्लाइड का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, आप उसको हटाना चाहते हैं, यू कैन डिलीट दैट स्लाइड। So what I'm trying to say that once the presentation is ready, you can modify the structure of the slide. You can switch from one slide to another slide easily. आप उसको change कर सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड को आप थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में ला सकते हैं। And if you some slides which is not important, you can delete those slides. So these are the four features we have seen, that it helps to create 4 type of or 5 to 6 type of presentation. Second, we can insert any kind of graphical material. Third, template is very useful for us because without template it is kind of giving too much effort to create the presentation. And fourth, once the presentation is made, it's not like it is fixed, it is final. We can change the structure of the presentation and we can delete the slides if required. Then the next one is beginning with the Impress in computer. मतलब आप Impress पे काम कैसे करते हैं, कई स्टेप्स दिया हुआ है प्रेजेंटेशन पे। जैसे लाइक ओपन ऑफिस का आइकन क्लिक करेंगे तो आपको किस तरह का आइकन दिखेगा, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और उसके सारे विंडोज़ के एक्सप्लेन किया गया है, जैसे स्लाइड पेन, वर्क स्पेस, टास्क पेन,
title bar, menu bar, edit, format menu. It is like a long explanation of each and every terms that has been mentioned in the window of Impress. मतलब आपके इम्प्रेस में एक एक चीज जो आपको दिखती है वो सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट 2 से 3 पेज में, कि किसे आप टाइटल बार कहते हैं, किसे मेन्यू बार कहते हैं। अगर टाइटल बार में इतने सारे ऑप्शन है तो क्या क्या है, टूल बार में क्या क्या ऑप्शन है, मेन्यू बार में क्या क्या ऑप्शन है, individually they have been explained. It is not like I'm going to explain everything line by line. ठीक है, ये आपको देखना है। स्लाइड लेआउट से मैं शुरू करूंगा, लेकिन इसके पहले जितने भी चीज़ एक्सप्लेन की गई हैं आपका 2 पेज में, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दैट द टॉपिक दैट वी हैव द नेक्स्ट दैट इज वर्किंग इन इम्प्रेस, मतलब इम्प्रेस में काम कैसे करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्किंग वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स, कि एक नया पीपीटी या नया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक एग्जिस्टिंग पीपीटी या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कैसे करते हैं, कैसे किसी करंट फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। मतलब क्रिएट करना, सेव करना और ओपन करना, ये 3 बेसिक ऑपरेशन होता है जब हम लोग वर्किंग की बात करते हैं। अब जब पीपीटी में काम करना हो वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स विच इज मेंशन इन योर बुक इन पेज नंबर 236। देन वी हैव द डिफरेंट विंडो एक्सप्लेनेशन कि किसको क्या कहते हैं। Let's just open and just see whether it's getting open or not. Then I will try to explain you everything directly in the screen itself. So this is how it looks. Presentation का icon पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे देखिए मैंने जैसे ही प्रेजेंटेशन का आइकन पे क्लिक किया 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एम्प्टी प्रेजेंटेशन, एम्प्टी प्रेजेंटेशन में जैसे ही जाएंगे आपको एक ब्लैक स्ट्रक्चर मिलेगा, पूरा ब्लैंक, बैकग्राउंड वो आपका वाइट रहेगा। आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स लगाइए, आपको पिक्चर लगाना है, पिक्चर लगाइए, बैकग्राउंड कलर सेट करना है, कलर सेट कीजिए। एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन बिकॉज दिस इज एम्प्टी प्रेजेंटेशन, देयर इज नो सच थिंग इन दिस प्रेजेंटेशन, दैट एवरीथिंग हैज टू बी कस्टमाइज। अब इसमें इसका प्रीव्यू भी आपको दिख रहा है। अब फॉर्म टेम्पलेट में जाते हैं, द टेम्पलेट्स आर बीइंग लोडेड। देखिए जितने भी टेम्पलेट्स आपके स्क्रीन पे अभी दिखेंगे, लेट्स सी हाउ मेनी टेम्पलेट्स आर देयर। 2 ही टेम्पलेट दिख रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, रिकमेंडेशन ऑफ ए स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 टेम्पलेट आपको अभी फिलहाल दिख रहा है। अगर इसमें टेम्पलेट में जाएंगे तो आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एम्प्टी प्रेजेंटेशन में आपका बैकग्राउंड ब्लैक था, पूरा तरह से व्हाइट था। और जब आप टेम्पलेट पे जाते हैं तो यहाँ पर टेम्पलेट काफ़ी कम दिख रहे हैं, नॉर्मली टेम्पलेट इससे ज़्यादा रहने चाहिए। तो आपको 2 ही टेम्पलेट दिख रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड कलर देख लीजिए चेंज हो रहा है, उसका फॉन्ट स्टाइल या हेडिंग कहाँ रहेगा वो आपको दिख रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आप जैसे इसमें नेक्स्ट जाएंगे तो आप इसका देखिए बैकग्राउंड कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। अभी भी आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, चलिए इसको फिलहाल मैं कैंसिल, इसको बैक करता हूँ, एम्प्टी प्रेजेंटेशन में करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर कुछ वो चूज़ करने बोल रहा है, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। ओवरहेड शीट्स, पेपर, स्लाइड्स, देखिए ये एक बैकग्राउंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड कलर अगर आपका ब्लैंक भी हो, बट एम्प्टी में भी जाएंगे तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्लाइड ट्रांजिशन किस तरीके से चाहिए, मतलब स्लाइड्स जब एक दूसरे के साथ एक के बाद एक दूसरा जाएगा, देखिए ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टर्म है जिसको हम लोग आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। देयर आर 2 to 3 टर्म्स, रियर्स एक होता है स्लाइड ट्रांजिशन, एक होता है रियर्स टाइमिंग, ठीक है। तो स्लाइड ट्रांजिशन में क्या होता है कि ट्रांजिशन इज बेसिकली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड जो जा रहा है, तो सेकंड स्लाइड आपके स्क्रीन पे किस तरीके से एंटर करेगा, ठीक है। वो कॉर्नर से आएगा, वो नीचे से आएगा, वो फ्लाई करते हुए आएगा। तो ट्रांजिशन इज बेसिकली द वे द स्लाइड शुड गेट एंटर्ड इनटू द स्क्रीन। इफेक्ट्स में आप जाकर चूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखेगा जो भी आप इफेक्ट चूज करोगे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको, वाइप लेफ्ट, अनकवर लेफ्ट, जैसे ये स्लाइड्स ये ट्रांजिशन मुझे अच्छा लग रहा है। अब इसके स्पीड को भी स्लो, मीडियम या फास्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का टाइप, मतलब आप जो पीपीटी बना रहे हैं एक स्लाइड्स पे
कितना टाइम देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट इसको रहने देता हूँ और क्रिएट में क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्रिएट में क्लिक करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे आप पीपीटी ओपन करते हैं आपको ऑप्शन देगा फॉर्म टेम्पलेट, एम्प्टी प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। एम्प्टी में जाना है, कलर चूज करना है। अगर आप फॉर्म टेम्पलेट में जाएंगे तो ऑलरेडी आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, ठीक है। इन केस अगर आप कोई ऐसा पीपीटी है जो ऑलरेडी सेव कर चुके हैं और उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में जाएंगे। तो ये आपका विंडो हो गया इम्प्रेस का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। तो नॉर्मली कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके सारे एप्लीकेशंस में कॉमन होती हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ऑन द टॉप दैट इज कॉल्ड टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार अभी अनटाइटल वर्ल्ड दिख रहा है क्योंकि उसका फाइल नेम कुछ है नहीं। उसी के नीचे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, मेन्यू बार। These all are menu bar. Then the next line is basically standard toolbar. Then the next line is formatting toolbar. ये जो लेफ्ट साइड में आपको मेरा ये पॉइंटर दिख रहा है वन, इस पे अगर मैं लेफ्ट न्यू करूँगा, न्यू स्लाइड्स, तो एक और स्लाइड आ गया और एक करूँगा तो ये जो लेफ्ट साइड में जो विंडो दिख रहा है जिसमें आपके सारे स्लाइड्स का मिनिएचर व्यू दिखता है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ वो आपको कंटेंट यहाँ दिखेगा। देखिए मैंने थर्ड स्लाइड पे लिखा, आपको थर्ड स्लाइड पे भी ऐसी रांची दिख रहा है। तो बेसिकली द moment we write anything in the slide, that content has been display in the left side of the window, वो अच्छी तरीके से दिखने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्लाइड पेन। दिस इज द डिफरेंट लेआउट ऑप्शन। देयर आर 12 लेआउट्स इन इम्प्रेस। ये स्लाइड लेआउट का ऑप्शन है। क्या है स्लाइड लेआउट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली से ये टेम्पलेट जैसा ही इसका डेफिनेशन है, बट मोर और लेस एक्चुअली लेआउट इज टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर फीचर एंड टेम्पलेट इज टॉकिंग अबाउट द इंटायर फीचर। तो इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं, लेबलिंग किया हुआ जो भी है आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कंट्रोल बॉक्स, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ तक ठीक है। स्लाइड पेन जो लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं, द एरिया इन विच एवरीथिंग इज ब्लैंक दैट इज कॉल्ड वर्क स्पेस। Then we have a horizontal scroll bar which is used to move from one slide from left to right or right to left. Then drawing toolbar is there especially for creating some graphical object in a slide. वो आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए ये। फिर स्टेटस बार, आपका पीपीटी अभी कितना प्रोसेस कंज्यूम कर रहा है, कितना मेमोरी कंज्यूम करके रखा है, सारी चीज़ें पीपीटी ये ड्राइंग टूल बार में दिखेगा। टाइटल बार आपको दिख गया, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये स्लाइड बार डेक हो गया, जूम हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है आपके नेक्स्ट 2-3 पेजेस में कि कौन सा क्या काम करता है, उनका क्या क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। देखिए नीचे आपको दिख रहा है ड्राइंग टूल बार। आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि काम कैसे करना है। सी इफ यू हैव द रिसोर्स, डू इंस्टॉल इन ओपन ऑफिस एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग, because this is not something that you will just learn again and again, and these are some practical ideas that you will have 10 years down the line, or you will have the utilization of it. तो मेरा पर्पस ये था कि आज के क्लास में मैं आपको बताऊं कि फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। इनमें काम जब करते हैं तो विंडोज़ किस तरह से दिखता है, वर्क स्पेस, मेन्यू बार, टाइटल बार। डेफिनेशन आपको बुक में 3-4 लाइन का मिलेगा। आई एम नॉट आस्किंग दैट यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ लॉन्ग डेफिनेशन। राइट डाउन इन ए ब्रीफ एंड दैट शुड बी समथिंग दैट इजीली वन कैन अंडरस्टैंड। तो ये आज का यहाँ तक हो गया। ये सब मैं आपको बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मैंने आपको ऑलरेडी मैं रिमाइंड बता चुका हूँ। ऑलरेडी आपको एक एक लाइन का दिया हुआ है और कुछ ऐसा है नहीं जो आपको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लाइड लेआउट। लेट मी जस्ट चेक, प्लीज वेट। यस, इट इज इन द नेक्स्ट टॉपिक, सो वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो slide layout is there in the next topic. Then we have different steps that how to create a presentation, everything, how to create a text and different other things that we do. Okay, so this is what we have for the day, children. Thank you everyone, and whatever the homework is there you will get it in the WhatsApp group as well as in your Google Classroom. Maybe if the last week Google Classroom is not up to date, you will get it updated, don't worry. And thank you. If you have any doubts, please put up your doubts in the group, and
This is for the day. Thank you. Stay home and stay safe.